اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، شیخ جلال الدین چشتی صاحب نے مجھے ایک آئیڈیا دی اور کہا سمیر بھائی اپنے چینل پر ڈالو، اور تھوڑی سی گزارش بھی کر دینا عوام الناس سے کہ انہوں نے ایک گاؤں ہے جہاں پر انہوں نے تقریباً 8 لاکھ روپے کی زمین لی ہے، اس پر سنی مسجد تعمیر کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ تو اگر لوگ ان سے جڑنا چاہیں یا مسجد کی تعمیر میں ان کی امداد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، تو ایسی اپیل کر دینا آپ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ان کا جو چینل ہے فیضان مجاہد ملت، اس پر بھی انہوں نے ایک 5 منٹ کی ایک ویڈیو بنا کر ڈالی ہے جس میں وہ پورا مسجد کا ایریا دکھا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت کا نمبر ہے، آپ اگر کچھ امداد کرنا چاہیں تو ان کی نمبر پر رابطہ کر کے مزید جانکاری لے کر آپ ان سے امداد کر سکتے ہیں۔ ہاں رامو دیوبندی، کیا حال ہے؟ اچھا، بدتی بھائی بول رہے ہو؟ بدتی بھی بھائی بھی؟ ارے بدتی ہے ویسے، جیسے ہندو بھائی ہیں اسے تم بھی بدتی بھائی ہو۔ تم کون ہو؟ ہم تو مسلمان ہیں یار۔ مسلمان ہیں؟ جی ہاں۔ ہم مسلمان نہیں کیا تمہارے تم نظر کہاں میں؟ سے؟ تم مسلمان ہو نا؟ بدتی مسلمان نہیں ہوتا، نہ وہ دائر اسلام سے خارج ہیں وہ لوگ۔ بدتی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ دیکھیے ہاں۔ کتنا بڑا بیوقوف دیوبندی ہے، یہ کہہ رہا ہے بدتی بھی کہہ رہا ہے دائرہ اسلام سے خارج بھی کہتا ہے۔ بدعت دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ کون سی بدعت کی تعریف کرتے ہو؟ بدعت کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ ارے جو مزاروں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، اور جو ولیوں سے یہ سمجھ کے مانگتے ہیں کہ ان میں بھی پاور ہے، یہ بھی دینے کے حق، کچھ دینے کے حقدار ہیں یہ بھی، ہاں، ولیوں کے مزاروں سے مانگتے ہیں، ان کو بدعتی کہتے ہیں۔ ان کو بدعتی کا کون سی کتاب پڑھے ہو؟ ہم نے کتابیں تو کوئی نہیں پڑھی ہے۔ کوئی نہیں پڑھے تو پھر ایسے ہی مناظرہ کرنے آئے ہو؟ نہیں، مناظرے صرف ہم دیکھتے ہیں سب۔ دیکھتے ہیں، دیکھ کے تمہارے مولویوں کی جو بیوقوفی ہے وہ دیکھ کے تم بھی بیوقوف بنے ہو۔ کہاں بیوقوف ہے یار؟ وہ دیکھو بیوقوفی سے مولانا ولیوں طاہر سے حسین مانگتے گاوی رحمۃ ہیں، اللہ علیہ کے مناظرہ ہوا تھا کٹیہار ولیوں سے مناظرے اگر کا۔ مانگتے ہیں یہ سمجھ کر کے وہ طاقت ہے، تو وہ اگر بدعتی ہو جائے تو سب سے بڑا بدعتی تو اشرف علی تھانوی ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ تم لوگ تھانوی اچھا کی ایک بات کتاب، بتاؤ تو، اگر جھوٹ نہ بولو تو تمہارے لوگ کا کھانا نہ ہضم ہو، کیا ہوا جو ہے تمہیں لوگ کے جھوٹ بولنے کی گھٹی پلائی جاتی ہے؟ جھوٹ بولنے کی گٹی کس کو پلائی جاتی؟ کتاب دیکھ لو، میں کتاب بھیج دوں ابھی؟ کتاب؟ ارے تم لوگ کو نہ کتاب سمجھ میں آتی ہے نہ پڑھنی آتی ہے، تمہیں کچھ نہیں معلوم، صرف تو خالی بکواس ہوائی فیر تم مارنا ہی آتا ہے پڑھ کے صرف۔ بتاؤ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ ہم نے تم سے ایک دن سوال کیا تھا، تم نے اس تاریخ سے جواب ہی نہیں دیا۔ تو پہلے آج تم نے آج جو تم نے بیوقوفی دکھائی اس اور کا تو فون جواب دے دو۔ کاٹ کے نکل لیے، دوبارہ پکڑے نہیں ملے۔ اچھا تو یہ بتاؤ، قبروں ہاں۔ سے جو یہ سمجھ کے مانگ گئے کہ یہ بھی طاقت رکھتے ہیں تو وہ بدعتی ہوتا ہے، ہاں تو کس لحاظ سے بدعتی ہوتا ہے؟ قبر سے یہ سمجھ کر مانگنے سے بدعتی ہوتا ہے؟ دیکھو، ولی اللہ جو ہوتا ہے، سمجھے، جاؤ فاتحہ پڑھو اس کے اوپر، ولی کے اوپر، ولی جیسے ولی لوگ چلے ہیں ویسے ہر مسلمان کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، جی سمجھے؟ تبھی تو اس کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق ملے گی اس کو۔ تو وہ نیک ہمارے راستے پہ لیے چلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہیں؟ نیک راستے پہ چلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ نیک راستے پہ چلنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ پاک تمہیں بھی بخش دے گا۔ تو ہمیں بخش دیا، ہمارا کیا کوئی ولی کا کوئی پاور ہی اللہ نہیں دیا، تو کس ولی کو؟ کے راستے پہ لوگ ارے کیوں یار، چلیں گے؟ ولی کو پاور کی بات نہیں بتا رہے ہیں، مطلب جیسے وہ لوگ چلے ہیں اللہ رسول کے راستے پر، ایسے ہی ہر مسلمان کو چلنا چاہیے۔ ہمارا کہنے مطلب یہ، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ولی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کے مقرب بن جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کا پیر ہو جاتا ہوں، اس کا میں زبان ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تم نے اس کا مطلب صاف صاف بتا دیا۔ ایک اندھا بے عقل انسان ہوگا، وہ اس کے بھی سمجھ میں آ جائے گی یہ بات۔
तो तुम बताओ, तुमको क्या समझ में आई? तुम्हारी समझ में नहीं आई, हमारी तो समझ में आ गई, तुम्हारी नहीं समझ में आई अपनी समझ बताओ, समझ में क्या है? आई है? अच्छा, अपनी समझ बताएं। यानी जो तुमने क्या अल्लाह समझा? क्योंकि फिर वो बंदा बंदा जब भी चलता है वो अल्लाह की रजा के लिए चलता है, कोई भी काम करता है अल्लाह की रजा के लिए काम करता है। इसलिए कहा गया है कि मैं उसका हाथ पैर उसकी आंख कान सब बन जाता हूँ। समझे? तो पहले अल्लाह की रजा के लिए नहीं चलता था, फिर वली कैसा बना? कौन नहीं चलता था? पहले चलने के बाद भी, चलने के बाद अल्लाह की रजा से चलने के बाद ही तो अल्लाह फरमाया जो बंदा मेरा वली हो गया, मेरे मर्जी के मुताबिक चला, चलने के बाद वली हुआ। हाँ। वली होने के बाद अल्लाह फरमाता है जो वली हो गया मैं उसका हाथ हो गया, उसका पाँव हो गया, उसका जिस्म हो गया, उसका आंख हो गया। अल्लाह फरमाता है चलने के बाद हुआ। तो इसका मतलब तुम साबित क्या करना चाहते हो? इसका मतलब क्या वली अल्लाह से जो है पुकार के मांगना चाहिए कि ए वली पाक, ए फलाने फला वली, वली हमको लड़का दे दो, बच्चा दे दो, खाना दे दो, पीना दे दो, ये मांगना चाहिए? अब तुम फंस गए हो ना, इधर उधर की बातें मत करो। सुनो, जब अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा मेरा वली हो गया, मेरे मर्जी के मुताबिक पहले चला, चलने के बाद वली हो गया, वली होने के बाद मैं उसको ये इनाम देता हूँ कि मैं उसका हाथ हो गया, मैं उसका जुबान हो गया, मैं उसका आंख हो गया। उसका मतलब मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, उसका मतलब ये है कि वो बंदे का हाथ मामूली नहीं है, उसके हाथ पे इतनी ताकत है कि हजारों मील दूर वाले को भी दे सकते हैं। उसकी आंख में इतनी ताकत है कि हजारों मील दूर वाले से भी, हजारों मील दूर वालों को भी देख सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। ये पावर हो गई। अच्छा, मदद कर सकते हैं। हाँ, किस तरीके की? दुनियावी मदद की आखिरत की मदद? हर तरह की मदद। दुनियावी मदद तो तुम दुनिया भी में है तो उसकी दुनियावी मदद होगी ना। सुनो सुनो, दुनियावी मदद तो तुम भी दुकानदार से जाते हो कि भैया आज हमें 2 रुपए की माचिस दे दो, कल पैसे ले लेना, ये भी तो दुनियावी मदद है। हाँ, तो वली 2 रुपया की मैचिस की मदद नहीं करते, बल्कि करोड़ों अरबों खरबों की मदद करते हैं। दुनियावी के जो असबाब है वो अलग चीज है भाई, और बरज़ख़ जिंदगी की असबाब अलग चीज है। तुम कौन से मदरसे में पढ़ के मौलवी बने हो? इतना जाहिल हो तुम। कौन मौलवी? हम मौलवी है ही नहीं। हजारों मील दूर से मदद करने की, तो यहाँ असबाब कहाँ से आ गया? माँ फौकल असबाब भी मदद करते हैं। अरे बिद्दती भाई, बात ये है कि हम मौलवी ना ही मौलवी हैं, ना ही हाफिज है, हम कुछ भी नहीं, बस आपकी तरह हम भी तालिब इल्म हैं। फतवा झाड़ते हो, शर्म नहीं आती तुमको? क्या अनपढ़ जाहिल होकर तुम बात करते हो? और अपने मौलवियों से पहले सीख लो जाके। अच्छा, जाहिल कहीं का। अच्छा, तुम पढ़े लिखे हो? तो पढ़े लिखे हो तभी तो तुमको समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही तुमको, बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ हमें कि तुम हो? तो हम कौन से बेवकूफी वाली बात की? तुमने कहा कि वली के अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलता है। अरे वली होने के बाद उसको पावर अल्लाह देता है, वली होने से पहले जब वो मर्जी के मुताबिक चलते चलते वली बनता है। हाँ, अल्लाह की मर्जी पे चलकर वली बनता है। हाँ, नाफरमानी करके वली नहीं बनता। नहीं नहीं। हाँ, तो फरमा बरदार बनकर जब हर बात अल्लाह की मर्जी पर चला, चलने के बाद वो वली बना। वली बनने के बाद अल्लाह फरमाता है ये मेरी मर्जी के मुताबिक जब वली बना, अब मैं इसको ये पावर देता हूँ, मैं इसका हाथ हो जाता हूँ, इसका जुबान हो जाता हूँ, इसके मैं आंख हो जाता हूँ, हजारों मील दूर देखता है। जैसा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठ के हजारों मील दूर देख रहे थे, हजारों मील दूर आवाज पहुंचा रहे थे। तो असबाब या फौकल असबाब कौन से जरिए से देख रहे थे? ये तो करामत है। ये तो करामत असबाब से होता है या फौकल असबाब होता है? करामत तो अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है। करामत असबाब के तहत है कि असबाब से बाहर है? करामत असबाब से बाहर है। तो असबाब से बाहर, तो ये करामत वली को करामत देता है। करामत का मतलब क्या है? पावर, हाँ, इज्जत की। इज्जत, करामत का मतलब अल करामतु, इज्जत वाला होना। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? इसका तो किसी ने इनकार ही नहीं किया है। इससे साबित हो रहा है कि अल्लाह वालों को अल्लाह पावर देता है, वही पावर उनकी इज्जत है। अच्छा, उस पावर से इंसान भी फैज़ उठा सकता है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि इंसान उसी पावर को देख करके वली से फायदा उठा सकता है? वो पावर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह दिया है कि मिंबर पे बैठ के हजारों मील दूर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुना भी रहे हैं।
इस बात से किसने इनकार किया है? किसी तो तुम कोई भी इनकार आ किए जाए ना, पूरी वली को कोई दुनिया में पावर नहीं जितने देता, अल्लाह बोला। जितने फिरके बातिला है, जितने फिरके फिर क्या बातिला है, बातिला किसी तुम ने इस हो, बात वली से की इनकार पावर नहीं का किया है। इनकार कर रहे हो, हदीस का इनकार कर रहे हो। कौन और हदीस का? तुम्हारी इतनी तौबा बेवकूफी तौबा, है, अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह। कब्र पे अबे सिजदा यार तुम करता लोग है वो फिर झूठ बिदअती सुबह होता है, और बिदअती सुबह इस्लाम से खारिज होता है। फिर झूठ बोल रहे यार भाई, यार झूठ ना बोला करो यार। झूठ देखो कौन हम बोला? यार, हमने तुम्हारे पास बिदअती किसी वजह से इस्लाम फोन से मिलाया, खारिज तुम होता यार है। फिर झूठ बोल रहे हो क्यों भाई? देखिए, इसलिए अशरफ अली थानवी ने कहा था कि दुनिया के सारे बेवकूफ देवबंदी बन गए, सारे बेवकूफ तौबा मेरे ही तौबा हिस्से में आ गए। अस्तगफिरुल्लाह। किस में क्यों झूठ, फिर सुबह सुबह झूठ बोल रहे हो? तो अशरफ अली थानवी ने झूठ बोला था। कौन झूठ बोलेगा? थानवी बोला सारे बेवकूफ मेरे ही तुम हिस्से झूठ में। बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, थानवी ने कहा दुनिया के सारे बेवकूफ मेरे ही तुम हिस्से में झूठ आ बोल गए रहे हैं। हो भैया, तुम झूठ बोल रहे हो यार। वही तुम बता रहे कि जब तक तुम झूठ ना बोलो तुम लोग का खाना ही नहीं हजम होता है यार। अच्छा, तो तुम क्या बोले अभी? हम तुमने जो बिदत करे वो इस्लाम से खारिज होता है। बिद्दत और शिरक फिर वाले, शिरकिया बिद्दतिया सब 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 ये कौन जहन्नुम सी के बिदत, ईंधन है कौन सब सी ये। अमल बिदत है, कौन सी अमल इनको शिरक अल्लाह है, रसूल बताओ। से कुछ लेने ही देना नहीं है। हाँ? इनको अल्लाह रसूल से कुछ लेने ही देना नहीं है। शिरक तुमको अल्लाह बिद्दत रसूल से वाले जो कोई है लेना दे, तुम मनमानी बात करते हो। तुम हैं, मनमानी बात तुम करते हो, हदीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ तुम बात करते हो। हमें हदीस के खिलाफ हम बात नहीं हम चलो, बात तुम्हारी करते ज्यादा हैं, नहीं बेवकूफी, हम अब सोच इतना रखते हैं और तुमको। ज्यादा बकवास तुम्हारी सुनेंगे तो लोग उकता जाएंगे। तुम्हारी इतनी तुम लोग बेवकूफी, भैया अल्लाह के भी लोगों के हंसने गुस्ताख के हो, लिए, रसूल अल्लाह लोगों के भी को हंसने गुस्ताख के हो। लिए तुम्हारी इतनी बेवकूफी काफी है कि बिदअती इस्लाम से खारिज होता है। अरे भाई, बिदअत करने से इस्लाम से खारिज नहीं होता, कुफर और शिरक करने से इस्लाम से खारिज होता है। और जिस अच्छा अमल को तुम बिदअत बता रहे हो, अगर वो अल्लाह के शरीक समझ के करे तो वो बिदअत नहीं है, वो शिरक होता है। मुशरिक, शिरक अलग चीज है, बिदअत अलग अल्लाह चीज के है। बराबर शरीक। तुम बिदअत और शिरक में भी फर्क नहीं कर पाते, इतने हमें बेवकूफ हो पता है, देवबंदी। हमें तुम्हें बताने की तुम्हारे जरूरत नहीं मौलवी है। इतने बेवकूफ क्यों बना के रखते हैं तुम लोगों को? थोड़ा सा किसके अकल देना मौलवी? चाहिए, थोड़ा समझ देना चाहिए तुम लोगों को, थोड़ी बहुत इल्म देना चाहिए। हमारे तुम्हारे मौलवी तो मौलवी अल्लाह लोग का लाख जाहिल, लाख शुक्र और है कि तुमको जो उससे है, बड़ा जाहिल बनाते हैं। अल्लाह तुमसे का बड़े, लाख लाख शुक्र है, हमारे मौलवी तो इतने अल्लाह का लाख लाख पहुंचे शुक्र हुए है, हैं, देवबंदियत इतने से आप पहुंचे बचे हुए हुए हैं हैं। कि देखो मेरे तुम जो भाइयों, है जितने हमेशा लोग सुन जो है रहे हो, सिर्फ जलते इन रहोगे, देवबंदी सिर्फ जल बेवकूफ जल से के मर बचो। जाओगे। एक नंबर का बेवकूफ गधे हैं देवबंदी, और देवबंदियों का अकल भी गधे की सामान की तरह है। ये अशरफ अली थानवी ने लिखा है।